Hello students. In previous video we have seen about the first part of chapter 2, that is matter around us pure, from class 9 science. Yes, first part we have gone through. Now in second part we are going to learn about suspension and colloidal solutions, right? So here we are going to start with suspension. What are suspensions? Non-homogeneous system like those obtained by group C in activity 2.2, in which solids are disappeared in liquid, are called suspensions. A suspension is a heterogeneous mixture in which the solute particles do not dissolve but remain suspended throughout the bulk of the medium. सब्सटेंसेस आर द मतलब ऐसे सिस्टम्स हैं जिसमें सॉलिड जो है डिस्पर्स होता है, मीन्स ये नॉन होमोजीनियस सिस्टम होते हैं जो कि हमने देखा, जो एक्टिविटीज़ हमने ग्रुप सी और ग्रुप डी के स्टूडेंट्स ने की, उसमें सॉलिड जो है वो डिस्पर्स हो जाता है लिक्विड में। ऐसे सॉल्यूशन को क्या कहते हैं हम? सस्पेंशन कहते हैं। और सस्पेंशन इज़ अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर इन विच द सॉल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट डिजॉल्व। सस्पेंशन एक ऐसा हेट्रोजीनियस मिक्सचर है जिसमें सॉल्यूट पार्टिकल्स जो हैं वो कम्प्लीटली डिजॉल्व नहीं होते हैं, बट थ्रू आउट उसी में नीचे सस्पेंडेड रहते हैं। ठीक है। पार्टिकल्स ऑफ अ सस्पेंशन आर विजिबल टू द नेकेड आइज। हम खुली आँखों से भी, मीन्स विदाउट किसी मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज़ करके भी हम पार्टिकल्स को देख सकते हैं सस्पेंशन के। नाउ प्रॉपर्टीज़ ऑफ सस्पेंशन. व्हाट आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ सस्पेंशन? सस्पेंशन इज़ अ heterogeneous mixture. Right, suspension is a heterogeneous mixture. The particles of a suspension can be seen by naked eyes. Without the use of magnifying glass or microscope, we can see the particles, right? The particles of suspension scatter a beam of light passing through it and make its path visible. So what happens during with suspension solution? What happens when we pass a beam of light through a suspension solution? Light passes through and it makes a path which is visible. Means if see here example, we are taking this torch and we are passing the light from two glasses. So what is happening here? One is a solution of copper sulfate that does not show Tyndall effect, means the light which is passing from that particles, we cannot see that. And B, and in that beaker mixture of water and milk, that is showing Tyndall effect. Why it is so? Because in beaker B the solution is what? The solution is suspension, and through suspension when we pass a light, the particles will scatter and they will show a path of visibility of light through it. Okay. Next point is the solute particles settle down when a suspension is left undisturbed. The solid particles will settle down. जब थोड़ा हम रेस्ट पर रखेंगे उस सॉल्यूशन को, तो थोड़े टाइम बाद जो पार्टिकल्स उसमें हमने मिक्स किए थे उस सॉल्यूशन में, दैट विल सेटल डाउन बीनीथ द बीकर, राइट? सो दे कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर. सॉल्यूशन में क्या था, जो कुछ भी सॉल्यूट उसमें हम ऐड कर रहे थे वो बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन हम डिफ्रेंशिएट नहीं, उससे अलग नहीं कर सकते थे. बट सस्पेंशन में क्या है कि वो जो पार्टिकल्स है वो नेकेड आई से दिखते हैं और वो थोड़े टाइम में नीचे खुद ही सेटल डाउन हो जाते हैं. तो इस वजह से हम उसको फिल्टर कर सकते हैं, उसको सेपरेट आउट कर सकते हैं विद द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन. When the particles settle down, the suspension break and it does not scatter light anymore. When particles settle down, जब particles नीचे settle हो जाते हैं, the suspension break, सस्पेंशन ख़त्म हो जाता है क्योंकि पार्टिकल्स जो उसमें मिक्स थे वो तो सारे नीचे सेटल हो गए, ऊपर सिर्फ सोल्यूट बचा है. सो इन दैट केस द सस्पेंशन ब्रेक्स and it does not scatter light anymore, and it will not scatter light. Okay. Now what is a colloidal solution? This we will see. The mixture obtained by group D in activity 2.2 is called a colloidal solution, colloid or a colloidal solution. The particles of a colloid are uniformly spread throughout the solution. What is happening in colloidal solution? The particles are
uniformly spread throughout this. These particles are uniformly spread throughout the solution. Due to relatively small size of particle as compared to that of a suspension, the mixture appears to be homogeneous. Means इसके जो particles का size होता है इसमें बहुत कम होता है, that's why इसका ये जो solution है homogeneous होता है. But actually a colloidal solution is heterogeneous mixture. उसका पार्टिकल्स का साइज़ बहुत स्मॉल होता है एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ सस्पेंशन, बट इन मिक्सचर इट अपीयर्स टू बी होमोजेनस. वो लगता ऐसा है कि वो होमोजेनस मिक्सचर है, बट दैट इज़ नॉट एक्चुअली होमोजेनस मिक्सचर, दैट इज़ अ हेट्रोजेनस मिक्सचर. फॉर एग्जाम्पल मिल्क. Okay, we'll take an example of milk. Because of the size of colloidal particles, we cannot see them with naked eyes. पार्टिकल्स को हम नेकेड आइज से नहीं देख सकते, बट दिस पार्टिकल्स कैन ईजीली स्कैटर अ बीम ऑफ विजिबल लाइट. ओके, थ्रू द सॉल्यूशन ऑफ वाटर एंड मिल्क, व्हाट विल हैपन व्हेन वी पास अ लाइट फ्रॉम दैट, they will scatter a beam of light. This scattering of beam of light is called a Tyndall effect. So ये जो स्कैटर हो रही है लाइट, जब हम उससे बीम ऑफ लाइट को पास कर रहे हैं किसी सस्पेंशन से, सो वो जो इफ़ेक्ट जो शो हो रहा है, ये जो इफ़ेक्ट शो हो रहा है, इस इफ़ेक्ट को हम क्या कहते हैं? टिंडल इफ़ेक्ट कहते हैं. टिंडल इफ़ेक्ट आफ्टर द नेम ऑफ द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड दिस इफ़ेक्ट. Tyndall effect can also be observed when fine beam of light enters a room through a hole. आपने देखा होगा जब मॉर्निंग में सुबह बहुत सनशाइन होती है, जब सन बिल्कुल टॉप मतलब सन जस्ट रेज ही हुआ होता है, उस टाइम पे अगर हमारे डोर्स क्लोज्ड हैं और बिल्कुल थोड़ा सा डोर अगर ओपन है हमारा, तो लाइट अगर उसमें से अंदर आ रही है तो उस टाइम पर क्या होता है कि एक रे जो है, सिर्फ एक सिंगल रे जो है हमारे रूम में एंटर कर रही होती है, तो उस टाइम पे उस रे में जितने भी उस एयर में पार्टिकल्स होंगे वो सब स्कैटर करते हुए दिखते हैं हमें. देखा है कभी आपने? देखिएगा एक बार, वो जो पार्टिकल्स बीम ऑफ लाइट में वो जो पार्टिकल्स स्कैटर कर रहे होते हैं, उस इफ़ेक्ट को हम क्या कहते हैं? टिंडल इफ़ेक्ट. ओके, Tyndall effect can also be observed when a fine beam of light enters a room through a small hole. This happens due to scattering of light by the particles of dust, smoke in the air. Air में भी बहुत सारे dust और smoke particles present होते हैं, तो इस वजह से light जो है scatter करती है. Now, Tyndall effect can be observed when sunlight passes through the canopy of dense forest. जो डेंस फॉरेस्ट है उसकी जो कैनोपी है, बड़े बड़े ट्रीज़ हैं, उनके बीच में जो गैप्स हैं, उसमें से जब सनलाइट की रेज पास करती हैं तो वहाँ पर भी टिंडल इफेक्ट शो होता है. इन द फॉरेस्ट मिस्ट कंटेन टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर विच एक्ट्स एज अ पार्टिकल्स ऑफ कोलॉइड डिस्पर्स्ड इन एयर. कुछ फॉरेस्ट में जब मिस्ट होती है जिसमें ह्यूमिडिटी मीन्स थोड़ा सा होता है हल्की सी एटमॉस्फेयर में, तो ह्यूमिडिटी में क्या होता है, थोड़ा सा वाटर ड्रॉपलेट्स होती है एटमॉस्फेयर में, तो उस वजह से ये जो पार्टिकल्स हैं वाटर की, ये आपको टिंडल इफेक्ट शो करती हैं. नाउ प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोलॉइड. व्हाट आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोलॉइड? वी आर गोइंग टू सी हियर. कोलॉइड इज़ अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर. कोलॉइड क्या है? एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है. द साइज ऑफ अ पार्टिकल ऑफ अ कोलॉइड इज़ टू स्मॉल टू बी इंडिविजुअली सीन बाय नेकेड आइज. पार्टिकल्स जो होते हैं कोलॉइड के वो बहुत छोटे होते हैं, वो इंडिविजुअली नेकेड आइज से विदाउट आपके मैग्नीफाइंग ग्लास या माइक्रोस्कोप से के नहीं दिखते हैं. कोलॉइड्स आर बिग इनफ टू स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग कोलॉइड का जो पार्टिकल्स का साइज़ है वो इतना इज़ टू स्मॉल टू बी इंडिविजुअली सीन बाय नेकेड आइज. मीन्स विदाउट माइक्रोस्कोप के भी हम उनको देख सकते हैं. ओके, नाउ कोलॉइड्स आर बिग इनफ टू स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट एंड मेक्स इट पाथ विजिबल. वो इतने बड़े होते हैं कि जब उनसे एक बीम ऑफ लाइट पास होती है तो वो अपना पाथ विजिबल हो रहा है ऐसा शो करते हैं.
They do not settle down when left undisturbed. That is a colloid is quite stable. colloid का जो solution है वो stable होता है, क्योंकि जब हम उसको अनडिस्टर्ब रखते हैं, जब उसको हम ऐसे ही छोड़ देते हैं, तब उसके पार्टिकल्स जो है नीचे सेटल डाउन नहीं होते हैं, जैसा कि सस्पेंशन में होता वो पार्टिकल्स सेटल डाउन होते हैं. ओके, नाउ दे कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन. फिल्ट्रेशन की प्रोसेस से भी ये सेपरेट आउट नहीं होते हैं. बट अ स्पेशल टेक्निक ऑफ सेपरेशन नोन एज सेंट्रीफ्यूगेशन कैन बी यूज टू सेपरेट द कोलॉइडल पार्टिकल्स. कोलॉइडल पार्टिकल्स को सेपरेट करने के लिए सेंट्रीफ्यूगेशन की प्रोसेस से हम इनको सेपरेट आउट कर सकते हैं. The components of colloidal solution are dispersed phase and the dispersion medium. जो components है colloidal solution के, उन्हें हम क्या कहते हैं, dispersed phase कहते हैं. और जो मीन्स जो कंपोनेंट्स है कोलॉइडल सॉल्यूशन के वो क्या क्या हैं, डिस्पर्स्ड फेस और डिस्पर्शन मीडियम, ये दो उसके कंपोनेंट्स है. द सोल्यूट लाइक कंपोनेंट्स ऑफ द डिस्पर्स पार्टिकल इन अ कोलॉइड फॉर्म द डिस्पर्स्ड फेस. जो सोल्यूट कंपोनेंट है उसे हम क्या कहेंगे, डिस्पर्स्ड फेस कहेंगे. ठीक है. एंड द कंपोनेंट इन विच द डिस्पर्स्ड फेस इज सस्पेंडेड इज नोन एज डिस्पर्सिंग मीडियम. जैसे कि हम जिस सॉल्वेंट में उसको डिस्पर्स कर रहे होंगे, दैट विल बी नोन एज डिस्पर्सिंग मीडियम. कोलॉइड्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द स्टेट के बेसिस पे कोलॉइड्स को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं on the basis of solid, liquid or gas of the dispersing medium and the dispersed phase. A few common examples are given in table 2.1. Now we will see table 2.1. See, dispersed phase liquid, and when dispersed phase will be liquid and dispersing medium will be gas. मीन्स liquid जो है हमने जब गैस में डाला है तो उसको हम क्या कहते हैं, उस कोलॉइड को हम कहते हैं एरोसोल. और इस टाइप के कोलॉइड का एग्जाम्पल क्या है, जैसे कि फॉग, क्लाउड्स, मिस्ट, ये उसके एग्जाम्पल हैं. फिर डिस्पर्स फेज जब सॉलिड है और डिस्पर्शन मीडियम जब गैस है तो भी एरोसोल है. और एग्जाम्पल क्या है, स्मोक, ऑटोमोबाइल्स, एग्जॉस्ट. जब डिस्पर्स फेज गैस है और डिस्पर्सिंग मीडियम लिक्विड है, उस टाइप का जो कोलॉइड होगा वो क्या है, फोम है. और फोम किस में यूज़ होता है, ये फोम शेविंग क्रीम में. ओके. नाउ जब डिस्पर्स फेज लिक्विड है, डिस्पर्सिंग मीडियम भी लिक्विड है, तो उसे क्या कहते हैं, इमल्शन कहते हैं. जैसे मिल्क इज़ अ इमल्शन ऑफ व्हाट, मिल्क एंड मिल्क क्रीम, और यू में से मिल्क एंड वाटर. सो इसे हम कहते हैं इमल्शन. फिर जब डिस्पर्स्ड फेज सॉलिड हो और डिस्पर्सिंग मीडियम लिक्विड हो, तो एट दिस केस उसको हम क्या कहेंगे, सॉल्यूशन कहेंगे. जैसे कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मड, शुगर सॉल्यूशन यू में से. जब डिस्पर्स फेज गैस हो और डिस्पर्सिंग मीडियम सॉलिड हो तो उसे क्या कहेंगे, हम फोम कहेंगे. और फोम वापस किस में प्रेजेंट होता है, रबर, स्पंज, प्यूमाइस, फोम. ओके. जब लिक्विड डिस्पर्स फेस हो और डिस्पर्सिंग मीडियम सॉलिड हो तो उस टाइप को हम क्या कहेंगे, जेल. ठीक है. मीडियम सॉलिड है, उसमें थोड़ा सा हमने लिक्विड डाल दिया तो जेल कंसिस्टेंसी हो जाएगी. तो इसके एग्जांपल्स क्या हैं, जेली, चीज़, बटर. Now when dispersed phase is solid and dispersing medium is also solid, then solid solution will be formed, solid sol, and that sol will be known as colored gemstone. ना जेमस्टोन कैसे होते हैं, सॉलिड होते हैं, उसके अंदर डॉट्स कुछ डला हुआ होता है, वो सॉलिडिफाई हो जाता है. ठीक है. और मिल्की ग्लास. दीज आर सम कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ colloid we have seen yet. Now we will see separating the components of mixture. How we can separate the components of a mixture. We have learned that most of the natural substances are not chemically pure, right? Different methods of separation are used to get individual component from a mixture. So separation makes it possible to study and use the individual component of a mixture. Heterogeneous mixture can be separated in their respective constituents by simple physical methods like hand picking, sieving, filtration.
that we use in our day-to-day life. Sometimes special techniques have to be used for the separation of the components of the mixture. Now here we are going to learn about the processes which are involved in the components, separating the components of mixture. So in a heterogeneous mixture what is happening that हम easily उसको separate out कर सकते हैं, filter कर सकते हैं उसको, hand picking से हम उसको separate कर सकते हैं. So हम physical method से भी इनको separate कर सकते हैं. But कुछ मिक्सचर्स ऐसे होते हैं जिनमें फिज़िकल मेथड से हम उनको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, सेपरेट आउट नहीं कर सकते. दैट्स वाई वी नीड सम केमिकल प्रोसेसेस. सो हाउ let us see here, how can we obtain colored component dye from blue or black ink. now हमको ब्लू और ब्लैक इंक से कलर्ड कंपोनेंट को निकालना है. तो हम क्या करेंगे, see here an activity is given, fill a half beaker with water. वाटर से फिल करेंगे बीकर को. put a watch glass on the mouth of the beaker, put few drops of ink on the watch glass. now start heating the beaker. We do not want to heat the ink directly, so we'll see the evaporation is taking place from the watch glass. See here in picture water vapors are formed, we can see this here, है ना. So in this way we are going to do this. Now what is the next step? Now start heating the beaker. We do not want to heat the ink directly, so we'll see that evaporation is taking place from the watch glass. Continue heating as the evaporation goes on and stop heating when you do not see any further change on the watch glass. जब वेपर्स निकलना ख़त्म हो जाए तब फिर आप उसको बंद कर सकते हैं. ऑब्जर्व केयरफुली द रिकॉर्ड ऑब्जर्व. अब हमें रिकॉर्ड को ऑब्जर्व करना है. वी फाइंड दैट इंक इज़ अ मिक्सचर ऑफ अ डाई इन वाटर. हमें क्या रिजल्ट मिलेगा कि इंक जो है, इंक एक मिक्सचर है डाई का वाटर में. दिस इज thus we can separate the volatile component, that is solvent, from its non-volatile solute by the method of evaporation. evaporation से हम इसको separate कर सकते हैं. आपको आया ये एक्टिविटी समझ? ओके. नाउ हाउ कैन वी सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क. क्रीम से हम मिल्क से हम क्रीम को कैसे सेपरेट करेंगे. नाउ डेज वी गेट फुल क्रीम मिल्क, टोन्ड एंड डबल टोन्ड वेराइटी ऑफ मिल्क पैक्ड इन अ पॉली पैक्स ऑफ टेट्रा पैक्स इन द मार्केट. अभी तो हमें बहुत सारी वेराइटी में मिल्क मिलता है अलग अलग वे में. फुल क्रीम मिल्क, टोन्ड मिल्क, डबल टोन्ड मिल्क, राइट. सो दीज आर सम वेराइटीज़ ऑफ मिल्क. तो हम कैसे अलग करेंगे. सी टेक सम फुल क्रीम मिल्क इन अ टेस्ट ट्यूब. टेस्ट ट्यूब में हम फुल क्रीम मिल्क लेंगे. सेंट्रीफ्यूज इट बाय यूजिंग अ सेंट्रीफ्यूज मशीन फॉर 2 minutes. उसको हम सेंट्रीफ्यूज कर लेंगे. If a centrifuge machine is not available in school, you can do this activity at home by using a milk churner used in the kitchen. जो milk churner होता है वो यूज़ करके हम milk को centrifuge करेंगे. If you have a milk dairy nearby, visit it and ask how they separate cream from milk and how they make cheese or paneer from milk. Okay? Now answers. Sometimes the solid particles in a liquid are very small and pass through a filter paper. For such particles, the filtration technique cannot be used for separation. कुछ ऐसे solid particles liquid में इतने छोटे होते हैं और वो इतने dissolve हो जाते हैं कि वो filter paper से separate नहीं हो सकते हैं. ठीक है. तो इसलिए उसके लिए हमें कुछ डिफरेंट फिल्ट्रेशन टेक्निक्स का यूज़ करना पड़ता है. सच मिक्सचर्स आर सेपरेटेड बाय सेंट्रीफ्यूगेशन. तो ये जो मिक्सचर्स है ये सेंट्रीफ्यूगेशन की प्रोसेस से सेपरेट किए जाते हैं. द प्रिंसिपल इज़ दैट द डेंसर पार्टिकल आर फोर्स टू द बॉटम एंड द लाइटर पार्टिकल स्टे एट द टॉप एंड स्पन रैपिडली. सेंट्रीफ्यूगेशन में बेसिकली हम क्या करते हैं, मिक्सर कैसे वर्क करता है ऐसे ये सेंट्रीफ्यूगेटर वर्क करता है. बहुत ज़ोर से जो मिक्सचर होता है उसको स्पन किया जाता है. तो क्या होता है, जो हेवियर पार्टिकल्स हैं वो नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं और जो लाइटर पार्टिकल्स हैं वो ऊपर
आ जाते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ द फर्स्ट प्रोसेस वी हैव सीन, दैट इज़ सेंट्रीफ्यूगेशन। फिर नेक्स्ट उसकी एप्लीकेशन क्या है, यूज्ड इन डायग्नोस्टिक लेबोरेटरीज फॉर ब्लड एंड यूरिन टेस्ट। ब्लड और यूरिन टेस्ट के में भी सेंट्रीफ्यूगेशन का यूज़ होता है। यूजेस यूज्ड इन डेयरीज एंड होम टू सेपरेट बटर फ्रॉम क्रीम। क्रीम को जब हम बटर से सेपरेट कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे भी ये यूज़ होता है। यूज्ड इन वॉशिंग मशीन्स टू स्क्वीज आउट वाटर फ्रॉम वेट क्लोथ्स। जब वॉशिंग मशीन से हम स्क्वीज़ कर रहे होते हैं कपड़ों को और गीले कपड़ों में से हम पानी को निकाल रहे होते हैं, दिस इज़ ऑल्सो व्हाट, दिस इज़ ऑल्सो अ प्रोसेस ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन। नाउ हाउ कैन वी सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड। ऐसे लिक्विड्स जो इमिसिबल हैं, जो मिक्स नहीं होते हैं, जैसे कि वाटर एंड ऑयल, तो इनको सेपरेट हम कैसे करेंगे उसके लिए देखते हैं। सो व्हाट वी विल डू हियर, लेट अस ट्राई टू सेपरेट केरोसिन ऑयल फ्रॉम वाटर यूजिंग अ सेपरेट फनल। पोर अ मिक्सचर ऑफ केरोसिन ऑयल एंड वाटर इन अ सेपरेटिंग फनल। फनल में हमने ले लिया, सेपरेटिंग फनल में वाटर और केरोसिन ऑयल। नाउ अब हम क्या करेंगे, लेट इट स्टैंड अनडिस्टर्ब फॉर सम टाइम सो दैट सेपरेट लेयर्स ऑफ ऑयल एंड वाटर आर फॉर्म। जैसे हम उसको अनडिस्टर्ब रखेंगे, उसको जब हम हाथ नहीं लगाएंगे तो थोड़ी देर बाद हमें ये कुछ इस तरह से दिखने लग जाएगा। सी यहाँ पर केरोसिन ऊपर हो गया है, वाटर जो है वो नीचे आ गया है और केरोसिन उसके ऊपर लेयर बना ली है, ठीक है। सो नाउ लेयर अलग अलग बन गई। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू स्टार्ट द ओपन द स्टॉप कॉक फॉर सेपरेटिंग फनल एंड पोर आउट द लोअर लेयर ऑफ वाटर केयरफुली। अब क्या करेंगे, हम यहाँ से स्टॉप कॉक को ऑन कर देंगे और वहाँ से धीरे धीरे ड्रॉप बाय ड्रॉप करके हमारा सॉल्यूशन नीचे बीकर में आएगा। तो जब तक पूरा वाटर निकल नहीं जाता है, हमें उसकी तरफ ध्यान रखना है कि जब तक वाटर नहीं निकलता तब तक हमें उसको प्रेस करके रखना है, ठीक है, ताकि जो है जो वाटर है वो नीचे के नीचे निकल जाए और केरोसिन जो है वो उसी में अंदर रह जाए, राइट। नाउ व्हाट आर द, ये क्या है, इस प्रोसेस से हम सेपरेट कर सकते हैं इमिसिबल लिक्विड को। नाउ व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ दिस, टू सेपरेट मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर। पानी और वाटर के मिक्सचर में को हम इस तरह से सेपरेट कर सकते हैं। फिर इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम इट्स आयरन ओर। जब हम आयरन को सेपरेट करते हैं आयरन ओर से, जो उसका रॉ फॉर्म है आयरन की ओर, आयरन मेटल का उसका ओर जो है, सो उसके एक्सट्रैक्शन में भी हेल्पफुल होता है ये प्रोसेस। द लाइटर स्लैग इज रिमूव फ्रॉम द टॉप बाय दिस प्रोसेस टू लिव द मोल्टन आयरन एट द बॉटम ऑफ द फर्नेस। फर्नेस के बॉटम में मोल्टन जो है आयरन वो रह जाता है और जो लाइटर स्लैग है वो ऊपर रिमूव हो जाता है, ओके। The principle is that immiscible liquids separate out in the layer depending on their densities। जिसका डेंसिटी के बेसिस पे immiscible liquid जो है सेपरेट आउट होते हैं। जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी वो बाद में निकलेगा। Now how can we separate a mixture of a salt and ammonium chloride? अगर सॉल्ट और अमोनियम क्लोराइड का सोल्यूशन आपको रिमूव करना है तो आप कैसे करेंगे, okay, we have learned in chapter 1 ammonium chloride changes directly from solid to gaseous state on heating। हमने sublimation का process पढ़ा है last chapter में। So to separate such mixture that contain a sublimable volatile component for a non-sublimable impurity, the sublimation process is used when some examples of solid which sublime are ammonium chloride, camphor and naphthalene and anthrace, okay। नाउ सब्लिमेशन का जो है यहाँ पर हम देखेंगे प्रोसेस जो हमने देखा था। यहाँ पर हमने एक बीकर जो है चाइना डिश लिया है। चाइना डिश में हमने अमोनियम क्लोराइड रख दिया है और अमोनियम क्लोराइड का और सॉल्ट का मिक्सचर, उसके ऊपर हमने इन्वर्टेड फनल रख दिया है।
अब जैसे ही हम बर्नर से इसमें हीट देंगे, व्हाट विल हैपन, द वेपर्स ऑफ अमोनियम क्लोराइड विल फॉर्म एंड जब ये थोड़ा कूल डाउन हो जाएगा उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम जब ऑब्ज़र्व करेंगे तो ये जो वेपर्स हैं अमोनियम क्लोराइड की, ये वेपर जाके सॉलिडिफाई हो जाएंगी एट द नेक ऑफ द फनल. ओके, नाउ अब हम देखेंगे इज़ द डाई इन ब्लैक इंक अ सिंगल कलर. ये जो ब्लैक इंक जो है वो सिंगल कलर है या उसमें वो भी कोई मिक्सचर है. तो हम यहाँ पे देखेंगे इंक की प्रोसेस को कैसे सेपरेट, इंक को हम कैसे सेपरेट करते हैं इंक के कंपोनेंट्स को. तो हियर वी आर गोइंग टू परफॉर्म वन एक्टिविटी. टेक अ थिन स्ट्रिप ऑफ फिल्टर पेपर. एक फ़िल्टर पेपर लेंगे, उसकी थिन स्ट्रिप लेंगे, उसमें एक लाइन बना लेंगे ऑन इट यूजिंग अ पेंसिल अप्रॉक्सीमेटली 3 सेंटीमीटर अबाव द लोअर एज. लोअर एज के 3 सेंटीमीटर अबाव हम उसमें एक लाइन ड्रॉ करेंगे. नाउ पुट अ स्मॉल ड्रॉप ऑफ अ इंक दैट इज़ फ्रॉम द स्केच पेन और फाउंटेन पेन. ठीक है, एक उसके ऊपर डॉट लगाएंगे इंक का एट द सेंटर ऑफ द लाइन. लेट इट ड्राई, उसको थोड़ा सूखने देंगे. फिर लोअर द फिल्टर पेपर इनटू अ जार. एक जार बीकर या टेस्ट ट्यूब में कंटेनिंग वाटर, उसको ड्रॉप ऑफ इंक को मीन्स वो पेपर को उस जार में या बीकर में इस तरह से डालना है कि आपकी जो लाइन है और जो आपका डॉट है वो जो लाइन है वो नीचे रहे, वाटर के नीचे रहे. नाउ वॉच केयरफुली एज द वाटर राइजेस अप ऑन द फिल्टर पेपर. अब थोड़ी देर बाद क्या होगा कि वाटर के जो मॉलिक्यूल्स है वो धीरे धीरे उस फिल्टर पेपर से ऊपर की तरफ ट्रांसफ़र होंगे और आपको ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करना है. सो इसमें क्या होगा, what will be the observation. The ink that we use has water as the solvent and the dye is soluble in it. जो इंक हमने यूज़ की यहाँ पर वो वाटर सॉल्यूबल थी और वो जो सॉल्वेंट था वो हमने वाटर यूज़ किया यहाँ पर. और डाई जो है सॉल्यूबल होता है वाटर में. एज द वाटर राइजेस फ्रॉम द फिल्टर पेपर इट टेक्स अलॉन्ग विथ इट द डाई पार्टिकल्स. तो जैसे पानी फिल्टर पेपर से ऊपर गया तो वो जो डाई का डॉट है, उस डाई के डॉट में से डाई के पार्टिकल्स भी वाटर के मॉलिक्यूल पार्टिकल्स के साथ ऊपर फिल्टर पेपर में गए. ओके, यूजुअली अ डाई इज़ अ मिक्सचर ऑफ 2 or more colors. तो as the water rises on the filter paper it takes along with the dye particles. Usually a dye is a mixture of 2 or more colors. जो dye है वो 2 or more colors का mixture होता है. The colored components that is more soluble in water rises faster. जो कलर्ड कंपोनेंट्स है जो सॉल्यूबल थे वाटर में वो फटाफट ऊपर जाके सेपरेट आउट हो जाएंगे एंड इन दिस वे द कलर गेट सेपरेटेड. राइट, तो ऊपर जाके आपको उस डाई में कितने कलर्स प्रेजेंट है वो आपको दिख जाएगा. ओके, नाउ दिस प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर इज़ नोन एज क्रोमेटोग्राफी. तो ये जो प्रोसेस है जिससे हमने इस डाई के ड्रॉप से हमने देखा कि इंक एक पर्टिकुलर एक ही कलर है या उसमें और भी कुछ कलर्स हैं, ये जो प्रोसेस ऑफ सेपरेशन है इसे हम क्या कहते हैं, क्रोमेटोग्राफी कहते हैं. जिसमें क्रोमा का मीन्स जो होता है ग्रीक वर्ड है क्रोमा, जिसमें क्रोमा का मीनिंग होता है कलर. और दिस टेक्निक वॉज फर्स्ट यूज फॉर द सेपरेशन ऑफ कलर. सो दिस नेम वॉज गिवन, दैट इज़ क्रोमेटोग्राफी. राइट, सबसे पहले इस प्रोसेस को कलर के सेपरेशन के लिए यूज़ किया गया था, इसलिए इसको नाम दिया है क्रोमेटोग्राफी. क्रोमेटोग्राफी इज़ अ टेक्निक यूज फॉर सेपरेशन ऑफ दो सॉल्यूट्स दैट डिजॉल्व इन सेम सॉल्वेंट. जो सेम सॉल्वेंट में डिजॉल्व सॉल्यूट को हम जब डिजॉल्व करते हैं इस टेक्निक में. With the advancement in technology, new techniques of chromatography have been developed. You will study about chromatography in higher classes. जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस हुई है वैसे वैसे क्रोमेटोग्राफी की नई नई टेक्निक्स भी देखने को मिली है. Now,
How can we separate a mix? We'll see applications of chromatography. What are the applications of chromatography? To separate colors in a dye. डाई से डाई कौन कौन से कलर से मिलके बनी है, ये अगर हमें पता करना है तो विद द प्रोसेस ऑफ क्रोमेटोग्राफी वी कैन ईजिली सेपरेट इट आउट. पिगमेंट्स फ्रॉम नेचुरल कलर्स में जो कौन कौन से पिगमेंट्स प्रेजेंट है उसको सेपरेट करने के लिए हम क्रोमेटोग्राफी का यूज़ कर सकते हैं. फिर ड्रग्स फ्रॉम ब्लड के सैंपल में, ब्लड का जब सैंपल लेंगे तो उसमें से अगर ब्लड को अलग करना है और जो ड्रग्स हैं, जो मेडिसिन हमने ली हैं, उनको सेपरेट आउट करना है, तो इस चीज़ में भी क्रोमेटोग्राफी इज़ हेल्पफुल और क्रोमेटोग्राफी प्लेज अ वेरी वाइटल रोल. ओके, नाउ हाउ कैन वी सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ टू मिसिबल लिक्विड्स. जो दो मिसिबल लिक्विड्स हैं, मतलब जो मिक्स हो पा रहे हैं एक साथ, उनको हम कैसे सेपरेट करेंगे ये हमें देखना है अभी. सो सी, लेट अस ट्राई टू सेपरेट एसीटोन एंड वाटर फ्रॉम देयर मिक्सचर. वाटर और एसीटोन लिया हमने. टेक द मिक्सचर इन अ डिस्टिलेशन फ्लास्क. बाय द प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन वी कैन डू दिस. और हमने डिस्टिलेशन फ्लास्क में जो है वाटर और एसीटोन का मिक्सचर जो है फिल कर लिया है. सी, और उसमें एक थर्मोमीटर भी फिट कर दिया है. जस्ट सी अ डायग्राम हियर. नाउ अरेंज द apparatus एज शोन इन फिगर 2.9. इस तरह से अरेंज करना है. नाउ हीट द मिक्सचर स्लोली कीपिंग अ क्लोज वॉच एट द थर्मोमीटर को हमने देखते रहना है और हीट को बढ़ाना है. The acetone vaporizes, condenses in the condenser and can be collected from the condenser outlet. अब यहाँ पे क्या होगा, वाटर और एसीटोन है. एसीटोन को जब हीट करेंगे इस मिक्सचर को, तो जो एसीटोन होगा वो ऊपर उड़ने लगेगा. तो क्या होगा, एसीटोन वेपोराइज होगा और ऊपर जाके कंडेंस होने लगेगा, मीन्स जमने लगेगा. वो जमकर, कभी आपने देखा है कंडेंसेशन के प्रोसेस, अगर वाटर बॉईल हो रहा है किसी बीकर में और उसके ऊपर हम ढक्कन रख देते हैं, तो वो वेपर जब ऊपर जाके उस ढक्कन से टकराती है तो वो वाटर मॉलिक्यूल्स वहीं पे रुक जाते हैं, जम जाते हैं. तो ये जो प्रोसेस है ये क्या हो रहा है, इसे हम कहते हैं कंडेंसेशन. तो इन द सेम वे जब यहाँ पे एसीटोन वेपोराइज होगा तो ये ऊपर जाकर कंडेंस होने लगेगा कंडेंसर में, और वो फिर आगे कंडेंसर आउटलेट में. ये देखिए डायग्राम में, वाटर कंडेंसर जो है, कंडेंसर की थ्रू मदद से वो नीचे आ जाएगा, कलेक्ट कर लिया जाएगा कंडेंसर आउटलेट में. ठीक है. सो वाटर इज़ लेफ्ट बिहाइंड इन द डिस्टिलेशन फ्लास्क. तो इस प्रोसेस से क्या हुआ, वाटर जो है डिस्टिलेशन फ्लास्क में ही रह गया और एसीटोन जो था वो रिमूव हो गया उसमें से. ठीक है. सो ये जो प्रोसेस होती है इसे हम क्या कहते हैं, डिस्टिलेशन कहते हैं. इट इज़ यूज्ड फॉर द सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर कंटेनिंग टू मिसिबल लिक्विड दैट बॉयल विदाउट डिकम्पोजिशन एंड हैव सफिशिएंट डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट. तो ये जो प्रोसेस है ये किस चीज़ को सेपरेट करने में हेल्पफुल होती है. इट इज़ यूज्ड फॉर द सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर कंटेनिंग, ऐसे लिक्विड्स को डिफ्रेंशिएट, सेपरेट आउट करती है जो एक दूसरे में मिसिबल होते हैं, एक दूसरे में बहुत अच्छे से मिक्स हो जाते हैं और जो बॉईल होने पर डिकम्पोज नहीं होते, ऐसे और जिनके बॉइलिंग पॉइंट्स डिफरेंट होते हैं. जैसे कि एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है. सो इसलिए जब हमने हीट दिया तो एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट कम था तो वो फटाफट बॉईल होके ऊपर उसकी वेपर्स निकल गई, वाइल वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होने के कारण उसे और हीट रिक्वायर्ड थी. ओके. So in this way, by the process of distillation, we also can do separation. To separate a mixture of two or more than miscible liquid for which the difference in boiling point is less than 25 K, fractional distillation process is used. For example, for the separation of different gases from air, different fractions from petroleum products, etc. The apparatus is similar to that for a simple distillation. The apparatus जो होता है वो that is similar to that of simple distillation, except that the fractioning column is fitted in between the distillation flask and the condenser. Now condenser और distillation flask के बीच में क्या कर दिया है, fractional column हमने डाल दिया है. ठीक है.
See the diagram. Okay, so this is, in this way fractional distillation is to be carried out. Now we have to see how can we obtain different gases from air. एयर से हम एयर के सॉल्यूशन से डिफरेंट एयर्स को अगर हमें सेपरेट आउट करना है तो हम कैसे करेंगे. तो एयर जो होती है, एयर एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है और उसको सेपरेट किया जा सकता है इसके कंपोनेंट्स में बाय द प्रोसेस ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. द फ्लोर डायग्राम शोज द स्टेप्स ऑफ द प्रोसेस. ठीक है, नाउ सी हियर दिस फ्लो चार्ट. एयर लिया हमने, ठीक है. एयर को क्या करेंगे, कंप्रेस एंड कूल बाय इंक्रीजिंग प्रेशर एंड डिक्रीजिंग टेम्परेचर. उसको कंप्रेस कर देंगे, उस पर प्रेशर अप्लाई करेंगे, फिर एंड कूल बाय इंक्रीजिंग प्रेशर, और उस पर ठंडा कर लेंगे उस पर प्रेशर इंक्रीज़ करके, एंड डिक्रीजिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर को डिक्रीज़ करके, मीन्स इन शॉर्ट उसको कूल कर लेंगे, ठंडा कर देंगे. नाउ जो एयर है वो कन्वर्ट हो गई लिक्विड एयर में, जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था. ठीक है, फिर अब क्या हुआ, अलाउ टू वार्म अप स्लोली इन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम. अब उसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम में डाला और उसको अलाउ करेंगे कि वो गर्म हो जाए. सो गैसेस गेट सेपरेटेड एट डिफरेंट हाइट्स. थोड़ी थोड़ी हाइट पर जो गैसेस होंगी वो सेपरेट होंगी. सी, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ऑक्सीजन इज़ -183 डिग्री boiling degree centigrade. Boiling point of argon is -186 degree centigrade, and boiling point of nitrogen is -106 degree. Now percentage air by volume. In this way what is happening, it is 20.9% air by volume. Now for argon the value will be 0.09% by the volume, and for nitrogen it will be 78.1%. So this figure diagram shows that shows the process of obtaining gases from air. ठीक है. Now if we want oxygen gas from air, अगर चाहिए, we have to separate out all the other gases present in the air. सबको हमें निकालना पड़ेगा. So the air is compressed in increasing the pressure and then it is cooled by decreasing the temperature to get liquid air. अब हम क्या करेंगे, पहले तो सारी liquid gases को liquid बना के उसको कंप्रेस करेंगे, और फिर जैसे ही प्रेशर इंक्रीज़ करेंगे और उसको जब ठंडा होने देंगे टेम्परेचर को डिक्रीज़ करके, टू गेट लिक्विड एयर. लिक्विड एयर हमें मिल जाएगी. दिस लिक्विड एयर इज़ अलाउड टू वार्म अप. फिर इस लिक्विड एयर को हम गर्म करेंगे स्लोली इन अ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम. फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम से व्हाट वुड गिव गेट वेयर गैसेस गेट सेपरेटेड एट डिफरेंट हाइट्स डिपेंडिंग अपॉन देयर बॉइलिंग पॉइंट्स. ठीक है. Now here we have to see how we can obtain pure copper sulfate from an impure sample. Impure sample से हम pure copper sulfate को कैसे करेंगे separate. Now what we have to do here, how see, take some impure sample of copper sulfate in a china dish. एक china dish में impure substance ले लिया, dissolve it in minimum amount of water. Now filter the impurities out. filter कर लिया. evaporate water from the copper sulfate solution so as to get a saturated solution. evaporate water molecules. water molecules को ऊपर पूरा निकाल दिया, और evaporate water from the copper sulfate. फिल्टर द इम्प्योरिटीज़ आउट. डिज़ोल्व इट इन मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर. उसको डिज़ोल्व कर लेंगे. फिर फिल्टर द इम्प्योरिटीज़ आउट. जो इम्प्योरिटीज़ हैं उनको फ़िल्टर आउट कर लेंगे. इवापोरेट वाटर फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सोल्यूशन सो एज टू गेट अ सल्फर सैचुरेटेड सोल्यूशन. फिर इवापोरेट करेंगे वाटर को फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सोल्यूशन सो दैट वी कैन गेट अ सैचुरेटेड सोल्यूशन. Now cover the solution with the filter paper and leave it undisturbed at the room temperature to cool down slowly for a day. You will obtain the crystals of copper sulfate in a china dish. So this process of forming china dish is known as what? It is known as centrifugation. What it is?
Okay. So this process is called what? This process is known as crystallization. Now the crystallization method is used to purify solids. For example, the salt we get from sea water can have many impurities in it. Okay. So to remove these impurities, the process of crystallization is used. Crystallization is a process that separates a pure solution, and crystallization is a process that separates a pure solid in a form of its crystals from a solution. Now, crystallization technique is better than simple evaporation technique, as some good solid dense or some solid decomposes, or some like sugar may get charged on heating to dryness. Some impurities may remain disclosed in the solution even after filtration. Some evaporation Some impurities may remain dissolved in the solution even after filtration. On evaporation, these contaminate the solids. Now here we will see